Hello and welcome to another video in a machine learning course. And today we are discussing about another concept which is correlation. So what is correlation and what does it tell? Correlation basically tells us about the relationship between two variables. So in the data set, we have different kind of features. We have many features, right? One, two, three, many features. And if we want to see whether those features or those variables have any kind of relationship, then we can make use of correlation to find out these things that whether they are correlated or not, whether they have some kind of a relationship or not. Correlation tells us two things about that relationship. One is the strength, means how close that relationship, how strong that relationship is. The other thing is direction, means whether the relationship is positive or the relationship is negative. How we will measure these two things? With the help of this correlation coefficient represented by R. This is also known as Pearson correlation. The formula to calculate the correlation between two variables x and y is given as this. Let's say we have two variables. One is height and other is weight in the data set. And we want to see whether there is some kind of relationship between height and weight, right? We will represent height with x and we will represent weight with y. And then we will have some values for height. Let's say we have value 150 for height and the corresponding weights 50. We have value 160 for height and corresponding weight 60. We have value 170 for height and the corresponding weight 70. Now we want to see whether there is some kind of relationship between height and weight. By relationship, we mean whether increasing or decreasing height increase or decrease the weight. Is this kind of relationship exists between height and weight? You can see if the height is increasing, there is also an increase in the weight, right? You can see if the height is increasing, the weight is also increasing. It means there is some kind of relationship. Now, if by increasing one variable, the other variable also gets increased, then this kind of relationship is known as positive relationship, right? It is a positive relationship. So here from here, we will get the direction. So there is a positive correlation between height and weight because when we are increasing height, the weight also gets increased. Increasing one variable affect the other variable in such a way that it increase the other value, second variable. So there is a positive relationship. So if increasing one variable decrease the other variable, there is a negative relationship between those two variables, and that is known as negative correlation. And if there is no pattern, means if we increase or decrease one variable, it does not have some kind of relationship. Increasing or decreasing one does not actually affect the other variable, or there is no pattern that by increasing one variable will always increase the other. If there is no pattern, then it is known as then there is no relationship between those two variables. So we say then there is no correlation between them. So if the value comes out to be greater than zero with the help of this formula, we will say there is a positive correlation. If the value is less than zero, when we evaluate with the help of this formula, it says negative correlation. And if the value is zero, we will say then there is no correlation. The range that will come, the value of R can always be between -1 and 1. 1 mean that there is a positive strong correlation. Positive strong correlation. -1 mean that there is a negative strong correlation.
Zero mean that there is no correlation. It means two variables are not correlated with each other. वो एक दूसरे पे बिल्कुल उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. ठीक है. अब जितना आप जीरो से ऊपर जाते जाएंगे और वन के करीब जाते जाएंगे, आप उतना स्ट्रांग रिलेशनशिप की तरफ जाते जाएंगे. वो स्ट्रेंथ आपको बताएगा. जितना वन के करीब होंगे उतना स्ट्रांग पॉजिटिव होंगे. जितना वन से दूर होते जाएंगे उतना वीक होते जाएंगे. अब वो इस साइड से भी ऐसा ही है. जितना आप जीरो के करीब होते जाएंगे उतना आप वीक होते जाएंगे. जितना आप -1 के करीब होते जाएंगे उतना आप नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ जाते जाएंगे. अगर -1 है तो स्ट्रांग नेगेटिव कोरिलेशन है. इसका मतलब है एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. These are the types of relationship: positive, negative, and zero. Positive, negative, and zero. These gives us the direction, whether increasing one variable increase the other or decrease the other, right? एंड द स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलेगी कि जितना हम वन के करीब होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है. या जितना हम -1 के करीब होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है. ये -1 एंड 1 गिव्स अस द डायरेक्शन. और जितना हम जीरो के करीब होंगे उतना वीक को रिलेशन है. और अगर एग्जैक्ट जीरो होगा इसका मतलब है कि कोई भी को रिलेशन उनके दरमियान नहीं है. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट से यहाँ पे हमारे पास हाइट दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास वेट दिया हुआ है और हमने इसको प्लॉट कर लिया है इस ग्राफ के ऊपर. हम कह रहे हैं जब हमारे पास हाइट 150 है तब हमारे पास वेट कितना आ रहा है, 50 kg आ रहा है. जब हाइट हमारे पास 160 है, वेट हमारे पास 60 आ रहा है, अप टू सो ऑन. तो अगर हम इसके दरमियान रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें तो हमें ये नजर आएगा कि जब जब हाइट इंक्रीज हो रही है उसके साथ वेट भी एक रिलेशनशिप में इंक्रीज हो रहा है. और एक लीनियरली इंक्रीज हो रहा है कि 150 पे वो 50 है, 160 पे वो 60 है, 170 पे 70 है. एक लीनियर रिलेशनशिप है उसके अंदर. ठीक है. और अगर हम इस लीनियर रिलेशनशिप को हम विद द हेल्प ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं जो इन पॉइंट्स में से गुजर सकती है. हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं दैट कैन पास टू द सेंटर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है. अब ये अब रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में. यानी जब हम हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं तो वेट भी इंक्रीज हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज नाउन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट. और अब अगर हमें ये लाइन फाइंड आउट कर लेना तो अगर हमें हाइट दी जाए 155 और हमें कहा जाए वेट बताओ तो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन हम ये बता सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर इसके करस्पॉन्डिंग वेट को फाइंड आउट करेंगे. तो जो क्या आ रहा है हमारे पास 55 आ रहा है. इसका मतलब है 155 पे आपका वेट कितना है, 55 है. 160 पे आपका वेट अगर 60 है तो 165 पे आपका वेट कितना आएगा, 65 आएगा. तो एक रिलेशनशिप है एक तरह का इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कि एक के इंक्रीज होने से, ये हाइट के इंक्रीज होने से क्या होता है, नॉर्मली वेट भी इंक्रीज होता है. ये पॉजिटिव कोरिलेशन. अच्छा. अब हम देखते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. अब अगर नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल क्या हो सकती है, आवर्स ऑफ टीवी वॉच एंड ग्रेड्स. अगर आप बहुत ज्यादा टीवी देखते रहेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर टीवी देख रहे हैं तो चांसेस क्या हैं कि आपके ग्रेड्स उससे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे. अब देखें हमने आवर्स ऑफ टीवी को यहाँ पे ड्रा कर लिया कि हमने कितने घंटे टीवी देखी और ग्रेड्स को यहाँ पे ड्रा कर लिया. अब देखें अगर कोई बंदा 1 घंटा टीवी देख रहा है तो वो क्या है, उसके ग्रेड्स क्या है, उसके नंबर्स कितने आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं. ठीक. अगर 2 घंटे देख रहा है उसके 80 आ रहे हैं. 3 घंटे देख रहा है 70 आ रहे हैं. और जितना ज्यादा देख रहा है उतना उसका ग्रेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है. अब अगर आप इसके दरमियान डायरेक्शन में ड्रा करना चाहेंगे लाइन, तो लाइन तो आप ड्रा कर सकते हैं लेकिन वो क्या होगी, वो लाइन आपके पास किस तरह की आएगी, इस लाइन को इसमें से गुजरना है. एक स्ट्रेट लाइन तो हम इन पॉइंट्स में से गुजार सकते हैं लेकिन अब उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आ रही है, वो नेगेटिव वाली साइड पे आ रही है. यानी जितना ज्यादा हम टीवी देख रहे हैं उतने ग्रेड्स हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए ये कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव को रिलेशनशिप है. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इधर हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें हमारे पास शू साइज है और हमारा आईक्यू लेवल है.
हमने शू साइज को यहाँ पे ड्रा कर लिया ऑन एक्स एक्सिस और आईक्यू स्कोर को हमने अलोंग वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम किसी किस्म की लाइन ड्रा नहीं कर सकते जिस पे हम ये सारे पॉइंट क्या कर सकें, ड्रा कर सकें, जो लाइन इन सारे पॉइंट्स में से गुजरती हो। ठीक है, हम ऐसी कोई भी रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप नहीं बना सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखिए शूज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शू साइज कितना है, वो आपके आईक्यू स्कोर को नहीं डिफाइन कर सकता। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो एक एक इन इन दो वेरिएबल्स के दरमियान, शू साइज और आईक्यू के दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड आईक्यू लेवल, राइट। अच्छा, तो ये तो हमें समझ आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए एक एग्जाम्पल के जरिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हम ये एग्जांपल अगर देखें तो 150 हमारे पास हाइट दी हुई है और वेट दिया हुआ है। 150 पे 50 है, 160 पे 60 है, अप टू सो ऑन, इस तरह से 190 पे हमारे पास क्या है, 90 है। और हम इसी को एग्जांपल को लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। वैसे तो ये देखने से पता चल रहा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिलेशनशिप कैसा है। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा जो पहला वेरिएबल है हाइट है और दूसरा वेरिएबल जो हमारे पास है वो वेट है। हम इन दो के दरमियान रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। लेट्स से आई डिनोट द फर्स्ट वेरिएबल विद एक्स एंड आई डिनोट द सेकंड वेरिएबल वेट विद वाई। अब हमने कहा जब हमारे पास वेट 150 है तो हमारे पास हाइट 50 है। वेट हमारे पास 160 है तो हाइट हमारे पास 60 है, अप टू सो ऑन 170 पे 70 है, 180 पे 80 है, 190 पे ये क्या है, 90 है। ठीक है जी। अब हमें जो पियर्सन को रिलेशन का जो फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला हमें पता है कि जिसके ज़रिए हम आर फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। वो फार्मूला हमारे पास है सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है जी, कि एक्स के जितने पॉइंट्स हैं उन सब का मीन है एक्स वेरिएबल के। फिर वाई आई माइनस वाई बार is divided by square root of submission of xi minus x bar whole का square into submission of yi minus y bar whole का square। अब हम इसी को इस इन द फॉर्म ऑफ टेबल यहाँ पे लिखते हैं। पहले हम न्यूमरेटर को लिखते हैं। ठीक है जी, न्यूमरेटर के लिए हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार ये निकालना है। फिर हमें निकालना है वाई आई माइनस वाई बार। फिर हमने इन दो को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, ये तो अलग आ गए। फिर हमने इन दो को मल्टीप्लाई करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। चलें यहाँ तक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब एक्स बार हमने निकालना है। एक्स बार कैसे आएगा कि हम इन सब को ऐड कर दें। इन सब को ऐड करें तो ये हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आएगा, डिवाइडेड बाय इसको जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बार। अब जब हम ये करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है, इसको जब हम निकालते हैं तो ये वैल्यू अगर आप इन सब को सम करें और डिवाइड करें आप 5 से, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 170। सिमिलरली फॉर वाई मीन, तो वाई का मीन हम वाई वाले पॉइंट्स को ऐड करेंगे और जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 70। अब आगे हमने क्या करना है, एक्स आई का मतलब ये है फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स। ठीक है, फ्रॉम, ये जो सबमिशन है ये हमेशा आई फ्रॉम 1 to n, ठीक, फॉर एवरी सबमिशन ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। ठीक है जी, यानी हर हाइट के लिए। अब हमने क्या करना है, उसमें से मीन को माइनस करना है। तो क्या है, एक्स वन क्या है 150 माइनस मीन क्या है 170, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 150 माइनस 170 माइनस 20। अब सेम 160 माइनस 170 माइनस 10, 170 minus 170 is 0, 180 minus 170 is 10, and 190 minus 170 is
20। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई -20, -10, 0, 10, 20। अब आगे हम वाई आई में से वाई इसको माइनस करेंगे, ठीक है जी, वाई आई माइनस वाई बार करेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या आता है, यानी हर वैल्यू 50 माइनस 70, ये कितना आ गया, -20 आ गया। 60 माइनस 70 -10 आ गया। 70 माइनस 70 0 आ गया। 80 माइनस 70 10 आ गया। 90 माइनस 70 20 आ गया। नेक्स्ट क्या है कि हमने इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, ये जो दो कॉलम्स इनके अंदर वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 400। आगे देखें इसको हमने क्या किया, इन दो को जिनको हमने मल्टीप्लाई किया उनका सबमिशन करना। तो ये मल्टीप्लाई ये हमने कर दी, इसका अगर हम सबमिशन करेंगे तो ये हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 400 फॉर 800, ये 1000 हो गया। इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास क्या है, 1000 है। अब हमने न्यूमरेटर की वैल्यू निकाली, अब डिनोमिनेटर की निकालें। डिनोमिनेटर के लिए हमें एक्स आई माइनस एक्स बार जो कि हमने निकाला हुआ है इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, और वाई आई माइनस वाई बार जो निकाला हुआ है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके सबमिशन लेना है, सबमिशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। चलें अब हम ये करते हैं। हम कहते हैं जी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर हम करते हैं वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। चलें इसका स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 400, 100, 0, 100 एंड देन 400, ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर लें तो ये क्या आ जाएगा, सेम आएगा क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, 400, 100, 0, 100, 400। अब इनका अलग अलग सबमिशन करना है, ठीक है जी। इसका सबमिशन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1000, इसकी सबमिशन करें तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1000। अब ये अगर आप देखें तो ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अंडर द रूट हो रहे हैं, तो अगर आप इसको देखें तो ये आ जाएगा 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, बेसिकली 1000 इंटू 1000 है ना, क्योंकि ये वैल्यू भी 1000 आई है और ये भी 1000 आई है, तो इट बिकम्स 1000 अगेन। तो अब ये डिनोमिनेटर आपके पास 1000 आ गया है, इसको वापस यहाँ पे पुट करें तो जो वैल्यू आपके पास आर की आई है वो आई है 1। अब ये 1 वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि जो हाइट और वेट है इनके दरमियान, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है, पॉजिटिव को रिलेशन है, और वैल्यू एग्जैक्टली 1 आई है, तो इसका मतलब है देर इज वेरी स्ट्रांग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, जो कि हमने अभी यहाँ पीछे एग्जाम्पल में देखा भी कि हम एक पूरी लीनियर लाइन हर पॉइंट में से गुजार सकते हैं, जिसकी जो हमें ये बताता है कि बहुत स्ट्रांग को रिलेशन है इन वेरिएबल्स के दरमियान। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा और अब आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से पाइथन के अंदर हम इस को रिलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर हमें ये डेटा दिया जाए पाइथन में तो हम कैसे ये ग्राफ वगैरह ड्रा कर सकते हैं और इस को रिलेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। Okay, now let's resume. I am now on the notebook and now we are discussing about the correlation. So I will take the same example that I have shown you in the slides and I will tell you that how you can find out the value of R in the notebook, and I will also tell you how you can uh, draw the graph scatter plot to find out whether to visualize whether there is some kind of relationship between the between two variables. So first let me grab some data, some dummy data. So this is okay, the PD. I have to define the PD as well. Import pandas as PD. Okay, so this is our data where we have height and where we have weight. Okay, so now if we want to see the correlation between height and weight, we want to check if there is some kind of relationship between height and weight, what we will simply do is we'll say TF of
variable, let's say height, and simply call correlation, and we will pass on with which variable we want to find out the correlation with. हम हाइट का जिसके साथ कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, हाइट और जिस वेरिएबल के साथ कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं वो पास कर देंगे, और यहाँ हम कोरिलेशन को प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, okay, so the correlation, instead of correlation, the name of the function that we will use here is CORR, which represents for correlation. Okay. So now we see correlation and it says 1. It means that there is a strong positive correlation between height and weight. By strong positive correlation means if the value of height is increased, the value of weight is also increase in a linear manner. There is some kind of linear relationship. Now to see what it in a visual form, what we can do is we can plot a scatter plot. To visualize this thing, we can simply plot a scatter plot with the help of matplotlib. So for the scatter plot, just simply do a scatter, and in the function we can see we pass x value and we pass y value, right? So for the x value, we will simply pass height, and for the y value, we will simply pass weight. So you can see that there is a linear relationship, and we have plotted. If we want, we can draw a straight line between these two variables, and which will represent a scene, which will represent a a linear kind of relationship. So we can do with the PLT, and we can also do with the help of SNS. But we have not imported that. Let me quickly import that as well. Okay, we have imported that, but no attribute scatter. Okay. So here we have scatter plot. Instead of scatter, we have a scatter plot function in SNS. In matplotlib, you can simply call scatter. So I use SNS because here you can see the label has automatically been done, that the height is on the x-axis and the weight is along the y-axis, and you can draw a simple line bit that can passes through these point, and which will help us to find out the linear relationship. So there is a positive strong correlation between height and weight. Similarly, we can find out whether there is some kind of a correlation between, let's say, shoe and IQ size. So I have this data available here, and I will simply now, if I want to find out if there is some kind of correlation, I will write correlation is equal to df of, let's say, shoe size dot correlation. I want to check the correlation of this with IQ score, and I want to check what kind of correlation it is. So you can see the value comes out to be 0.19, which is very close to zero, right? It means that there is no relation, almost no relationship between shoe size and IQ score. This is very close to zero. So if we want to plot this, we can also do that with the help of scatter plot. Simple, what we can do is we can simply on x-axis, we will pass on the shoe size, and on the y-axis, we can pass on the IQ score. You can see the data is everywhere and it is spread out. There is no pattern in the data. We cannot draw or represent this relationship with the help of a linear relationship with the help of a line. So there is no correlation between shoe size and IQ score. So same we can do with the negative correlation. So I will left it for you that you can draw a negative correlation and represent it in the form of graph with the help of scatter plot.
for the example that we have discussed here in the slides. Right, you can, for this slide, you can go and find out the negative relationship for how hours of TV watched and grades. Try to plot this negative correlation on the using scatter plot and see. I hope this lecture is clear. The takeout for these slides are that the correlation is basically used to find out the relationship between the two variables, and if the relationship is in such a way that by increasing one variable increase the other variable, then it means there is a positive correlation. And if increasing one variable decrease the other variable, then there is a negative correlation. And if there is no certain pattern in between the increase and the decrease of two variables, it means that those two variables are not correlated with each other. I hope this is clear to you. If you have any question, just write me, or you can simply comment on this video and I will answer to you. Thank you very much and bye.